Hey friends, going on with the next chapter called vectors. It is a very complicated chapter. ये जो चैप्टर था ना प्रीवियस ईयर के सिलेबस में या the old syllabus, थोड़ा पार्ट 11th में था, थोड़ा पार्ट 12th में था. Right, so it was a nicely segregated chapter. 11th में they gave us an information about the dot product, the vectors का normal, क्या बोलते हैं, laws of vectors, the dot product, the cross product. 12th में they spoke about the collinearity, coplanarity. बताऊंगा ये सब. Section, midpoint formula, theorems and अपना box product. तो previous year के syllabus में ना the chapter was beautifully segregated into 4 parts in 11th and 4 parts in 12th standard, and that's how they combined the chapter. 12th में अभी new syllabus में 11th standard में vectors is completely out. vectors को निकाल चुके हैं वो लोग, फेंक दिया है. और 12th में साथ में खिचड़ी करके ऊपर नीचे डाल दिया है vectors. Okay, a chapter which will be very difficult for me to explain because it's all a mix. There are so many things in the chapter. चैप्टर देखने जाए सम्स काफी आसान है, सम्स सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, पर खिचड़ी है, बहुत सारे टाइप्स है. तो वी आर गोना सेग्रीगेट द चैप्टर, वी आर गोना डिवाइड द चैप्टर. आई एम गोना टीच द चैप्टर अकॉर्डिंग टू माय वे. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है in order to connect it with the textbook. Textbook में I am not a fan of this chapter though from the textbook because एक ही एक्सरसाइज में बहुत सारी चीजें खिचड़ी करके डाल दिया है. तो I am going to teach this chapter according to my way and we are going to solve the sums from the textbook of course, but थोड़ा ऊपर नीचे जाना पड़ेगा. If you observe from this chapter when I was going through in the 12th standard का new syllabus, first exercise में they have spoken about the basics of vectors and the sums on the basics of vectors. Second exercise में they have spoken about the section and midpoint formula and collinearity. Third exercise में dot product, fourth exercise में cross product and fifth exercise में box product. That's how they have segregated the chapter, which is good, but थोड़े sums के बीच में एक नया concept डाल दिया है वो लोग ने. That is what makes me a bit furious about the chapter का classification through the exercise sums. तो है अच्छा segregation, but बीच बीच में नए नए concepts घुस जाते हैं, तो वो मुझे अलग से तुम लोग को बताना पड़ेगा. So beginning with my chapter called vectors. Alright, vectors weightage I'm expecting 9 marks in the board examination approximately. Yeah, it is a huge chapter. 8 to 9 marks should be the weightage. ये चैप्टर में थोड़ा there is something called as a 3D geometry, 3-dimensional geometry also, which was a new, altogether a different chapter in the previous year syllabus. तो अगर देखने जाए ना वेक्टर्स को 3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन करके बनाया है. 11th स्टैंडर्ड वेक्टर्स, 12th स्टैंडर्ड वेक्टर्स एंड 12th स्टैंडर्ड का 3D ज्योमेट्री, तीनों को क्लब करके पिछले साल के सिलेबस का क्लब करके they have made this chapter vector. So ideally 9 to 12 marks. 9 to 12 marks is what I am expecting through from this chapter. Let's begin with the chapter called vectors. Vector quantity. What exactly is a vector quantity? Physics में पढ़ा है. Any quantity which requires value and direction. Magnitude and direction is a vector quantity, right? अगर मेरे पास एक force है, force is mass into acceleration. It's a vector quantity. मैं फोर्स को ऐसे मारता हूं, तो कैन आई से आई एम अप्लाइंग द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, तो इट हैज अ डायरेक्शन एंड मेरे फोर्स का वैल्यू इज गोना बी 5 न्यूटन. तो ऑब्वियसली इट हैज अ वैल्यू, इट हैज मैग्नीट्यूड एंड इट हैज डायरेक्शन. इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. सो वी नो व्हाट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. इट्स अ क्वांटिटी जिसके पास दोनों होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए और वैल्यू मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए. ओके, वेक्टर क्वांटिटी क्या है वो तो समझा. Now there are actually types of vectors and how do we represent a vector? Vector is represented this way. If I am writing AB arrow, usually it's an arrow. You can also call it as AB bar. Vector AB. Physics में we represent it using arrow. Maths में bar डाला, bar, वो bar नहीं, ये bar.
हाँ ये इट्स अलाउड, सो नो नीड टू ड्रॉ एन एरो इन वेक्टर्स. ओके, ए बी बार का मतलब अगर ये मेरा पॉइंट है ए एंड दिस इज माय पॉइंट बी, that means my starting point is A and my terminating ending point is B. That is nothing but AB bar or vector AB. तो AB खाली बार डाला मतलब समझ जाने का, पहला स्टार्टिंग पॉइंट होगा और आखिरी में जो दूसरा लिखूंगा वो मेरा टर्मिनेटिंग एंडिंग पॉइंट होगा. That's the representation. So this is the way of representing a vector. Now there is something called as the types of vectors. The types of vectors. So this was about the representation of a vector. अभी कुछ vectors के types पढ़ते हैं. The first type we call it as a unit vector. Unit vector मतलब vector जिसका magnitude is 1 unit, जिसका value हमेशा 1 होगा. 1 कुछ भी हो सकता है. 1 kg तो नहीं हो सकता है. 1 Newton और 1 momentum kg per meter square and so on, but it has to be 1. तो a vector जिसका magnitude 1 unit है उसको मैं unit vector बोलता हूं. Unit vector is represented by this way. Okay, these 2 bars is called a magnitude of a vector. Okay, and इसका magnitude कितना होगा 1. तो इसको हम लोग बोलेंगे magnitude of a vector. So magnitude of a vector is represented by dashes. A bar वेक्टर A का मैग्नीट्यूड अगर 1 है, अगर उसका वैल्यू आंसर 1 आता है, मैं उसको यूनिट वेक्टर बोलता हूं. अभी मैं थोड़ा 3D ज्योमेट्री पे जाता हूं. ये जरा चेक कर, मैं वेक्टर्स की ही बात कर रहा हूं. ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, इसको 3 एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं. इट्स अ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इन स्पेस. इस ये जो प्लेन है xy प्लेन है, ये जो प्लेन है yz प्लेन है, और जमीन द फ्लोर इज योर xz प्लेन. सो जस्ट लाइक द फ्लोर ऑन व्हिच आई एम स्टैंडिंग इज द xz प्लेन, मेरे पीछे का वॉल इज लाइक योर xy प्लेन, और ये जस्ट साइड में दीवार होगा ना इज योर xz प्लेन. So these are guys your 3 planes. You can say 3 planes. So this is your xy plane. Jameen is your xz plane and this is your yz plane. ठीक है ना? Okay. अगर मैं एक पॉइंट कंसीडर करता हूं इधर हवा में, it's a 3-dimensional geometry. इधर हवा में, in the air, in space, I am considering a point. मैं इधर हवा में तो मैं नहीं बना सकता हूं ना कुछ. It is augmented. So I can make a point out here. Let's say that point is P. ये जो point P है, उसको पहुंचने के लिए, P तक पहुंचने के लिए पहले मैं क्या करेगा पता है? चल ये पॉइंट इधर है, हवा में है. पहले मैं ओरिजिन से स्टार्ट करूंगा. दिस इज माय ओरिजिन 0 0 0. क्यों 0 0? Because there are 3 coordinates, there are 3 axes, so 0 0. Yeah. पहले I travel along the x-axis. I travel some distance, let's say x distance along the x-axis. Then फिर मैं ऊपर जाता हूं, y distance along the y-axis and then z distance along the z-axis. देख इधर पॉइंट है, पहले मैं x ट्रैवल करूंगा, फिर y ट्रैवल करूंगा, फिर पैरेलल टू z ट्रैवल करूंगा and I reach my destination. So if I join this and this, it's difficult to analyze it. As I said, it is a virtual part. P हवा में है, ये xy के प्लेन में नहीं है, वो इधर हवा में है. तो इधर पहुंचने के लिए पहले मैं I'm going to travel along the x-axis, then parallel to the y-axis, and then parallel to the z-axis. और मैं इधर मेरे destination पे पहुंच जाऊंगा. ठीक है ना? तो इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम में I can write it as x, y, z. ठीक है ना? तो अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करता हूं P, I can write it as x, y, z. अभी अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है मुझे, we call it as
वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे लिखना है, ओके, देख, अगर मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग या एक्स एक्सिस के पैरेलल चलना है तो मैं एक बोट में बैठूंगा। ये मेरा मेरा खुद का बनाया कॉन्सेप्ट है। मैं बोट में बैठूंगा, मैं नाव में बैठूंगा, जिसको आई कैप बोलते हैं। आई कैप। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज आई कैप? we call I cap as a unit vector. I'll tell you. Okay, इधर जो A cap है, okay, we call A cap as a unit vector. This is a unit vector जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मैं आता हूं, उस पे आता हूं, 2 मिनट है। I cap एक नाव है, एक बोट है, जिसमें मैं बैठूंगा तो मैं x एक्सिस के अलोंग पैरेलल या ऑन x एक्सिस चल पाऊंगा। चल पाऊंगा मतलब बैठूंगा तो वो बोट चलेगी, पता था। The vector along y axis is j cap and the vector along the z axis is k cap. मतलब ये सारी नाव है, these are all boats. अगर if I want to travel parallel to the y axis तो मैं बोट में बैठ जाऊंगा। कौन सी बोट में बैठूंगा? जे कैप की बोट में बैठूंगा और वो नाव मुझे लेके जाएगी मेरे डेस्टिनेशन पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे, मैं ओरिजिन पे हूं, मुझे वो पी तक पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा? लेट्स अज्यूम मैं 5 डिस्टेंस मैं आई कैप की बोट में बैठूंगा, वो नाव मुझे चला के 5 सेंटीमीटर तक पहुंचाएगी। मैं बोलूंगा रोक भाई, रोक दे। फिर मैं इधर पहुंचूंगा, फिर मैं जे कैप की बोट में बैठूंगा क्योंकि मुझे ऊपर की तरफ जाना है। समझना, मैं 4 सेंटीमीटर ऊपर गया, रुक गया, जे कैप को बोलता हूं ये रोक, बोट को रोक, मेरे को उतरना है। अभी मैं के कैप की बोट में बैठूंगा और समझो ना, मैं 6 सेंटीमीटर अलोंग और पैरेलल टू द z एक्सिस आई रीच माय डेस्टिनेशन। सो द कोऑर्डिनेट्स आर गोइंग टू बी 5, 4, 6। दैट मींस 5, 4, 6 are the magnitudes, they are the values which I am traveling along x, along y and along z. और वो मुझे कौन पहुंचाता है? The boats. So I call vector form में I call it as 5i cap plus 4j cap plus 6k cap and O से जर्नी स्टार्ट किया, P पे खत्म किया, we call it as OP bar. So OP bar vectorially, वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है। I cap is the direction along x axis, direction along y and direction along z axis. याद रखना। I'm going slow because ये चैप्टर इतना आसान नहीं है। Okay. So A cap is a unit vector and we have a formula. A cap is nothing but A bar upon magnitude of A bar. यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड का आंसर 1 होगा। अभी मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढने का? लिसन, इफ आई एम आस्किंग यू व्हाट इज ओपी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड म्हणजे वैल्यू, दिस इज द वे वी राइट इट। मैग्नीट्यूड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, that is 25 plus 16 plus 36. That is going to be कितना होता है ये? 52, 62, 72, 77. So I can say that the magnitude of OP is root 77 unit. Right. So I have learned 3 things. पहले वेक्टर कैसे लिखा जाता है? ये I cap, J cap और K cap क्या है? They give me the directions along x, y and z axis respectively. करेक्ट है? वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है। उसका अगर मैग्नीट्यूड वैल्यू ढूंढना है, वेक्टर विल गिव मी द डायरेक्शन। देखना, ऐसे 5 गया, ऐसे 4 गया और ऐसे में 6 गया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज रूट 77 फ्रॉम द ओरिजिन, लाइक अ डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? And magnitude of OP is root 77 units. So you have magnitude and you have direction. So hence it's a vector quantity. Right. So we understood about unit vector. We understood about magnitude of vector. That's the second part. Okay. Third part, we'll talk about position vectors. Okay. Position vectors.
Okay, position vectors are represented by small alphabets. ये एक याद रखना. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ओपी बार लिखता हूं, इसका पोजीशन वेक्टर छोटे अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं एंड वी गो उल्टा. इट इज पी बार माइनस ओ बार. यस, पी बार माइनस ओ बार. ओ इज ऑलवेज द ओरिजिन, सो इट इज एज गुड एज पी बार. मैं रिपीट करता हूं, ठहरो. ए बी बार अगर मैं तुम लोग को बोलता हूं इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्मेट में लिखो, हमेशा उल्टा जानेगा. बी बार माइनस ए बार. अगर मैं पी क्यू बार बोलता हूं इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्मेट में लिखो, इट विल बी क्यू बार माइनस पी बार. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टी एस बार, पोजीशन वेक्टर के फॉर्मेट में एस बार माइनस टी बार. दिस इज द वे यू राइट डाउन अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ अ पीवी. Yeah, you can use this as a shortcut. ये शॉर्टकट यूज कर सकते हैं जिसको हम लोग पोजीशन वेक्टर्स बोलते हैं. बस ये एक तरीका है लिखने का. जब मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन कराऊंगा ना, द लॉज ऑफ वेक्टर्स, आई विल टीच यू हाउ डू वी गेट दिस. जस्ट रिमेंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स एज ऑफ नाउ. ओके, माय नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट इक्वल वेक्टर्स. Okay, equal vectors are something like this. Let's say this is A bar and this is B bar. Equal vectors are those vectors which are equal in magnitude and exactly same in direction. मतलब वो लोग का दोनों सेम होगा. Same magnitude and same direction. They are called equal vectors. ठीक है ना? इक्वल वेक्टर्स किया, यूनिट वेक्टर किया, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर किया. ओके, माय नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट द फिफ्थ वन. यस, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर मुझे जो मेरे चैप्टर में रिक्वायर्ड है, आई एम गोइंग टू डू दोस विद यू, राइट? सो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में, और इक्वल वेक्टर्स हो गया ना, कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स पे जाते हैं. चलो, कोलिनियर एंड कोप्लेनर में बाद में करूंगा. लीनियर डिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ये चार टाइप के वेक्टर्स मैं बाद में करूंगा. ओके, कोलिनियर, कोप्लेनर, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर डिपेंडेंसी, लीनियर इंडिपेंडेंस वेक्टर्स, वो बाद में देखेंगे. पोजीशन हो गया, ठहरो. और कौन सा आता है? स्केलर ऑफ अ वेक्टर, स्केलर फॉर्म. स्केलर फॉर्म. ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्केलर फॉर्म. अगर मेरे पास एक वेक्टर है, लेट्स से a बार, एंड आई हैव अनदर वेक्टर व्हिच इज इसका डबल, 2a बार. मतलब डायरेक्शन इज द सेम, डायरेक्शन इज द सेम, लेकिन मैग्नीट्यूड में डबल है. सो आई कैन से दैट सेकंड वेक्टर, ओके, सेकंड वेक्टर इज 2 टाइम्स द फर्स्ट वेक्टर. अरे यार, अगर ये है ab और ये है cd, can I say CD bar is nothing but 2 times AB bar? क्योंकि AB bar A है, तो CD bar, can I say it will become 2A bar? This is called a scalar form. One vector is a scalar multiple. We call it as a non-zero scalar multiple. Scalar multiple क्योंकि वो multiply होता है of the other vector, and this is called a scalar form. Another example, अगर एक वेक्टर है p बार, दूसरा वेक्टर है 3 times p बार but in the opposite direction. So if I name this as ab, I name this as cd, can we conclude that ab bar is minus 3 times cd bar? Because yeah, ab bar is minus 3 times p bar. One vector is 3 times the other but in the opposite direction. Opposite direction matlab there is a symbol 3 with a negative sign, right? So this is called a scalar form. In general you can say that one vector is k times the other vector, और इसको हम लोग बोलेंगे scalar multiple, right? So अभी तक हम लोग ने देखा वेक्टर्स क्या है, कैसे लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, स्केलर मल्टीपल,
इक्वल वेक्टर्स एंड पोजीशन वेक्टर्स, ये 5 मोस्ट यूज्ड होने वाले हैं, मोस्ट यूज्ड, मैक्सिमम यूज्ड। ओके, फ्री वेक्टर्स है, लोकलाइज्ड वेक्टर्स है, उसका कोई यूजेज नहीं है मेरे को। और इसके बाद वी आर गोना गो विद द नेक्स्ट 4 टाइप्स व्हिच इज कोलिनियर, कोप्लेनर, लीनियर कॉम्बिनेशन, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, 5 वेक्टर्स। पहले इतना तो देखो। टॉकिंग